आज ही के दिन यानी 15 जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक नई महत्वाकांक्षी योजना की नहीं बल्कि यात्रा की शुरुआत हुई, स्किल इंडिया। इस मिशन का उद्देश्य सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के संकल्प से प्रत्येक भारतवासी को जोड़ना, विशेष रूप से युवाओं को अधिक सशक्त बनाना, आत्मनिर्भर बनने में सहयोग करना। एक युवा देश के नाते पूरे विश्व को भारत से जो अपेक्षा है उसे साकार करने में स्किल इंडिया मिशन की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसमें अनेक केंद्रीय मंत्रालय, विभाग, राज्य सरकारों के साथ साथ शिक्षा अनुसंधान से जुड़े संस्थान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान अपना योगदान कर रहे हैं। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब निवेदन करने जा रहे हैं प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, आदरणीय डॉक्टर मनीष कुमार जी से। उनसे निवेदन स्वागत उद्बोधन के लिए। On the occasion of the 5th anniversary celebration of the Skill India Mission, I have, on behalf of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, the proud privilege of welcoming to this digital event Honorable Minister for Skill Development and Entrepreneurship, Dr. Mahendranath Pandey, Honorable Minister of State for Skill Development and Entrepreneurship, Sri R.K. Singh ji, Chairman NSDC and Group Chairman Larsen and Toubro, Padma Vibhushan, Sri A.M. Nayak, Minister of Education, Labour and Employment, Government of Manipur, Dr. Radheshyam, Honorable Lieutenant Governor of Ladakh, Sri R.K. Mathurji, Secretary, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Mr. Praveen Kumarji, Director General DGT, Mrs. Neelam Sami Raoji, distinguished guests, officials of central and state governments, private training partners, participants, members of media, ladies and gentlemen. The United Nations General Assembly commemorates July 15th every year as World Youth Skills Day to generate greater awareness of and discussion on the importance of technical vocational education and training and development of marketable skills relevant to both local and global economies. Today also marks the 5th anniversary of the Skill India mission, which has been relentlessly working towards the vision of our Honorable Prime Minister to make India the skill capital of the world. Once again, I welcome you, all of you, to this digital celebration of an important milestones. Thank you for being here. For the welcome address. Thank you, sir, for the welcome address. और अब हम अनुरोध करेंगे सचिव कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय भारत सरकार आदरणीय श्री प्रवीण कुमार जी से कृपया आज के इस अवसर पर अपने विचार साझा करने की कृपा करें। All other dignitaries participating through online, all our trainees, all our training partners, all ITIs, I wish you a hearty welcome to this glorious occasion of the World Youth Skills Day. I will start by thanking the Prime Minister, Honorable Prime Minister, for privileging us with his address, which we will be hearing during this conclave. Now, this day is celebrated every year as the World Youth Skills Day, based on the UN resolution in General Assembly in 2014. But today is special because the 5th year since the Skill India mission was launched on the this day, on 15th of July 2015, under the guidance of Honorable Prime Minister. In the last 5 years, we have achieved a lot. This ministry has started to function and has been implementing a lot of policies, strategies to further the skill movement in the country. A new Pradhan Mantri Kaushal Yojana scheme has been launched. ITIs have been expanded. Steps have been taken to improve the quality in the ITIs. New model apprenticeship scheme has been launched. JSS have been activated as the last year of the skill movement. We can see the results. In the last 5 years, we have trained more than 5.52 crore people in this country across various programs and schemes in the country. We have developed 15,000 training partners
for the short-term training. 15,000 ITIs have come up across the country. With all districts having some ITI or a training center or a PMKK, 700 PMKKs in the country. From 70 lakhs being trained every year in 2014-15, we are now training 1.36 lakh people every year in the country. A new ASEAN portal, which is bringing the employer and the skilled employee together and acting as a virtual Rozgar Mela 24/7, 7 days a week, has been launched. A lot of regulatory steps have been taken, unique certification, all those steps have been taken in this last 5 years, and we have a lot to be proud of. Under COVID, during the hard times of COVID, the skill ecosystem rose to the occasion and contributed, be it producing masks. Around 20 lakh masks was produced by ITIs and 20 lakhs by the JSS. Health, we deployed health personnel trained again the skill system, almost 2 lakh people are deployed. Lot of innovative solutions were designed by the ITIs. ITIs were provided as wards. All these steps were taken during COVID to help the country meet the challenges of this pandemic. But now, with 5 years gone, it's time to ponder, examine, where should we go from now? With a strong base being set up, now it's a time to take off. We have to see what are the challenges caused by COVID, challenges caused by business disruptions, technological disruptions. All this has to be taken into account, and a new pathway has to be laid down. We are working on that, be it short-term training through a new PMKY3 or entire restructuring of the ITI system, entrepreneurship, apprenticeship, integration with the formal school system, so that the skill becomes aspirational and doesn't become the second-ring choice for the youth of today. I hope we'll be successful in the next 5 years, as we have been successful in the last 5 years. Thank you. Thank you, respected Secretary Sir Shri Praveen Kumar ji, for the address. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हर मंच से युवाओं से ये आह्वान करते हैं कि आपको देश की मुख्य धारा में जुड़ना है। और जब हम बात करते हैं स्किल इंडिया मिशन की, तो देश को सुदृढ़ बनाने के लिए, देश को सशक्त बनाने के लिए युवाओं की सेवाओं, युवाओं की कुशलता पर उन्होंने हमेशा बल दिया है। आज के इस शुभ अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को अपना आशीर्वाद दिया है। नमस्कार मेरे युवा साथियों को। वर्ल्ड यूथ स्किल डे की आप सभी नौजवानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का ये दिन आपकी स्किल को, आपके कौशल को समर्पित है। 21वीं सदी के युवाओं की, आज के मिलेनियल्स की अगर सबसे बड़ी कोई ताकत है तो उनकी स्किल है। उनकी स्किल एक्वायर करने की क्षमता है। साथियों, कोरोना के इस संकट ने वर्क कल्चर के साथ ही नेचर ऑफ जॉब को भी बदल करके रख दिया है और बदलती हुई नित्य नूतन टेक्नोलॉजी ने भी उस पर प्रभाव पैदा किया है। नए वर्क कल्चर और नए नेचर ऑफ जॉब को देखते हुए हमारे युवा नई नई स्किल्स को तेजी से अपना रहे हैं। वैसे साथियों, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आज के दौर में बिजनेस और बाजार इतनी तेजी से बदलते हैं कि समझ ही नहीं आता रिलेवेंट कैसे रहा जाए। कोरोना के इस समय में तो ये सवाल और भी अहम हो गया है। साथियों, मैं इसका एक ही जवाब देता हूं।
रिलेवेंट रहने का मंत्र है स्किल, रीस्किल और अपस्किल। स्किल का अर्थ है आप कोई नया हुनर सीखें। जैसे कि आपने लकड़ी के एक टुकड़े से कुर्सी बनाना सीखा तो आपका हुनर हुआ। आपने लकड़ी के उस टुकड़े की कीमत भी बढ़ा दी, वैल्यू एडिशन किया। लेकिन ये कीमत बनी रहे इसके लिए नई डिजाइन, नई स्टाइल, यानी रोज कुछ नया जोड़ना पड़ता है। उसके लिए नया सीखते रहना पड़ता है। और कुछ नया सीखते रहने का मतलब ही है रीस्किल। और हमारी जो स्किल है उसका और विस्तार करना। जैसे छोटे मोटे फर्नीचर बनाते बनाते आप और भी चीजें सीखते गए, पूरा का पूरा ऑफिस डिजाइन करने लग गए, तो वो हो गया अपस्किल। स्किल, रीस्किल और अपस्किल का ये मंत्र जानना, समझना और उसका पालन करना हम सभी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे जब मैं स्किल की बात करता हूं तो मुझे अपने बहुत पुराने जानने वाले हमेशा याद आते हैं। मेरा सीधा परिचय तो नहीं था, लेकिन हमारे एक जानने वाले सज्जन बताते रहते थे। वो उनके किसी परिचित के विषय में बताते थे कि वो ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन उनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी। समय के साथ उन्होंने अपने हैंडराइटिंग में और भी नए स्टाइल जोड़ दिए, यानी खुद को रीस्किल किया। उनकी ये स्किल देखकर लोग खुद उनके पास पहुंचने लगे। लोग उनसे कहते थे कि हमारे यहाँ स्पेशल ओकेजन है तो इनविटेशन कार्ड पर नाम वगैरह लिखने का काम आप कीजिए। बाद में उन्होंने खुद को रीस्किल किया, अपस्किल किया। उन्होंने कई और लैंग्वेजेस में लिखना शुरू किया और इस तरह से एक प्रकार से वो उनका कारोबार बन गया। बैठे बिठाए लोग उनके पास एक काम लेकर के आने लगे। शौक से पनपा हुआ एक हुनर रोजी रोटी का और सम्मान का भी एक माध्यम बन गया। फ्रेंड्स, स्किल इज समथिंग which we give to ourselves, which grows with experience. Skill is timeless. It keeps getting better with the time. Skill is unique. It makes you different from others. Skill is a treasure that nobody can take away. And skill is self-reliance. It is not only make one employable, but also self-employable. स्किल की ये ताकत जो है इंसान को कहां से कहां पहुंचा सकती है। साथियों, एक सफल व्यक्ति की ये बहुत बड़ी निशानी होती है कि वो अपनी स्किल बढ़ाने का कोई भी मौका जाने न दे। इतना ही नहीं, मौका ढूंढता रहे। स्किल के प्रति अगर आप में आकर्षण नहीं है, कुछ नया सीखने की ललक नहीं है, तो जीवन ठहर जाता है, एक रुकावट से महसूस होती है। एक प्रकार से वो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को, अपनी पर्सनालिटी को ही बोझ बना देता है और खुद के लिए नहीं, अपने स्वजनों के लिए भी बोझ बन जाता है। वहीं स्किल के प्रति आकर्षण जीने की ताकत देता है, जीने का उत्साह देता है। स्किल सिर्फ रोजी रोटी और पैसे कमाने का जरिया नहीं है। जिंदगी में उमंग चाहिए, उत्साह चाहिए, जीने की जीत चाहिए, तो स्किल हमारे ड्राइविंग फोर्स बनती है, हमारे लिए नई प्रेरणा लेकर आती है, ऊर्जा का काम करती है और
उम्र कोई भी हो, चाहे युवा अवस्था हो या बुजुर्ग, अगर आप नई नई स्किल सीख रहे हैं तो जीवन के प्रति उत्साह कभी कम नहीं होगा। साथियों, स्किल की क्या ताकत होती है, इससे जुड़ा हर किसी का कुछ न कुछ अनुभव होगा। मुझे भी आज जब आपसे बात कर रहा हूं तो एक पुरानी घटना याद आती है, और ये तब की बात है जब मैं युवा अवस्था में ट्राइबल बेल्ट में एक वॉलंटियर के रूप में काम करता था, और कुछ संस्थाओं के साथ मिलकर के मैं उनसे काम कर लेता था। तो एक बार एक संस्था के साथ, उनके लोगों के साथ कहीं बाहर जाना था, तो उनकी जीप में हम सब जाने वाले थे, लेकिन वो जीप सुबह जब निकलना था उसी समय चली नहीं। अब वो जंगलों में भटकते भटकते वो जीप भी ऐसे ही थी। हम सब लोग लगे, काफी कुछ कोशिश की, धक्के मारे, सब किया, लेकिन गाड़ी चली नहीं। आखिरकार 7-8 बज गए तो फिर किसी एक मैकेनिक को बुला लिया। उसने आकर के कुछ इधर उधर किया और 2 मिनट में तो ठीक कर दिया। फिर उसको पूछा कितने पैसे, तो बोले 20 रुपये। उस जमाने में 20 रुपए की कीमत बहुत होती थी। लेकिन हमारे एक साथी ने कह रहा है, यार 2 मिनट का काम और तुम 20 रुपए मांग रहे। उसका जवाब मुझे आज भी प्रेरणा देता है, मेरे मन पे प्रभाव करता है। उस अनपढ़ मैकेनिक ने कहा, साहब ये 2 मिनट का 20 रुपया नहीं ले रहा हूं, 20 साल से काम करते करते मैंने जो स्किल मेरे में आई है, जो अनुभव जुटाया है, ये 20 रुपया उसका है। मैं समझता हूं यही होती है स्किल की ताकत। स्किल आपके काम का ही नहीं, आपके भी प्रतिभा को, प्रभाव को प्रेरक बना देता है। और साथियों, यहां एक और चीज समझनी बहुत जरूरी है। कुछ लोग नॉलेज और स्किल को लेकर के हमेशा कंफ्यूज में रहते हैं या कंफ्यूजन पैदा करते हैं। ऐसे लोगों को मैं हमेशा एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आप बुक्स में पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं कि साइकिल कैसे चलाई जाती है, साइकिल पर कैसे बैठना है, साइकिल कैसी होती है, कौन सा पुर्जा क्या काम करता है, कहाँ हैंडल पकड़ना है, कहाँ ब्रेक लगाना, सब उसमें आपको वीडियो में भी दिखेगा। ये सब नॉलेज है। आपको नॉलेज है इसलिए आप साइकिल चला जाएंगे, ऐसा गारंटी नहीं है। लेकिन वास्तव में, एक्चुअल में जब साइकिल चलाना होता है तो स्किल की जरूरत पड़ती है। आपको ही खुद को धीरे धीरे आ जाता है, और फिर आप अपनी मस्ती में भी साइकिल चलाते हैं, चलते रहते, कोई तकलीफ नहीं होती है। जैसे जैसे आपने इस कला को सीख लिया, इस टैलेंट में आ गई, स्किल आ गई, आपको कभी दिमाग खपाना भी नहीं पड़ता है। और इस फर्क को समझना शासन से लेकर के समाज के हर स्तर पर बहुत जरूरी होता है। आज भारत में नॉलेज और स्किल दोनों में जो अंतर है, उसे समझते हुए ही काम हो रहा है। आज से 5 साल पहले आज के ही दिन स्किल इंडिया मिशन इसी सोच के साथ शुरू किया गया था। इसका मकसद यही था कि यूथ को नॉलेज के साथ ही स्किल भी मिले, कौशल भी मिले। इसके लिए देश भर में सैकड़ों प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र खोले गए, ITI की संख्या बढ़ाई गई, उनमें लाखों नई सीट्स जोड़ी गई। इस दौरान 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को स्किल डेवलपमेंट किया जा चुका है, और यह अभियान निरंतर जारी है। साथियों, तेजी से बदलती हुई आज की दुनिया में अनेक सेक्टरों में लाखों स्किल्ड लोगों की जरूरत है। विशेषकर स्वास्थ्य सेवाओं में तो बहुत बड़ी संभावनाएं बन रही है। यही समझते हुए
अब कौशल विकास मंत्रालय ने दुनिया भर में बन रहे इन अवसरों की मैपिंग शुरू की है। कोशिश यही है कि भारत के युवा को अन्य देशों की जरूरतों के बारे में उसके संबंध में भी सही और सटीक जानकारी मिल सके। किस देश में हेल्थ सर्विस में नए द्वार खुल रहे हैं, किस देश में कौन से सर्विस सेक्टर में क्या डिमांड बन रही है, इसमें जुड़ी जानकारी अब तेजी से भारत के युवाओं को मिल सकेगी। अब जैसे मर्चेंट नेवी का उदाहरण ले तो भारत समेत पूरी दुनिया को सेलर्स की बहुत जरूरत है। हमारी तो 7,500 किलोमीटर से लंबी कोस्टलाइन है। बड़ी संख्या में हमारा यूथ समुद्र और तटीय परिस्थितियों से परिचित है। अगर इस क्षेत्र में स्किल को बढ़ाने पर काम किया जाए तो दुनिया भर को हम लाखों एक्सपर्ट सेलर्स दे सकते हैं और अपने देश की कोस्टल इकोनॉमी को भी मजबूत कर सकते हैं। मैपिंग की वजह से अब इस तरह की जानकारियां देने का काम और आसान हो जाएगा। इसके अलावा 4-5 दिन पहले देश में श्रमिकों की स्किल मैपिंग का एक पोर्टल भी शुरू किया गया है। ये पोर्टल स्किल्ड लोगों को स्किल्ड श्रमिकों की मैपिंग करने में अहम भूमिका निभाएगा। इससे एम्प्लॉयर्स एक क्लिक में ही स्किल्ड मैन पावर तक पहुंच पाएंगे। खासकर जो श्रमिक हाल फिलहाल में शहरों से अपने गांव में गए हैं, उन्हें इससे बहुत मदद मिल पाएगी। आपने इधर बीच देखा भी होगा कि कैसे एक खास स्किल सेट के साथ गांव पहुंचे लोगों ने गांवों का कायाकल्प करना शुरू कर दिया है। कोई स्कूल को पेंट कर रहा है तो कोई डिजाइन के घर बनवा रहा है। छोटी बड़ी हर तरफ की ऐसी ही स्किल आत्मनिर्भर भारत की ही बहुत बड़ी शक्ति बनेगी। मैं देश के युवाओं को वर्ल्ड यूथ स्किल डे पर एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और वैश्विक महामारी का युग है तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि एक बार मैं बार बार एक चीज को दोहराता ही रहूं और सिर्फ मैं ना दोहराऊं, आप भी दोहराइए। और वो क्या है? पहले तो मैं चाहूंगा आप स्वस्थ रहिए। दूसरा, 2 गज की दूरी का पालन करते रहिए। मास्क पहनना न भूलें। थूकने की आदत सबको छोड़ने के लिए समझाते रहिए। और जिस काम के लिए आज इकट्ठे हुए हैं उस मंत्र को हमेशा याद रखें। कितना ही पढ़े लिखे क्यों न हो, कितनी ही डिग्रियां क्यों न हो, फिर भी निरंतर स्किल भी बढ़ाते रहना चाहिए। लगातार नई नई स्किल के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। जिंदगी जीने का आनंद आएगा, जिंदगी के नए अवसरों को पाने का आनंद आएगा। और मुझे विश्वास है कि आप अपने हाथों की ताकत, अपनी उंगलियों की ताकत, अपने दिल दिमाग की ताकत इस हुनर के द्वारा पनपाएंगे और बढ़ाएंगे और खुद की प्रगति करेंगे, देश की भी प्रगति करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत शुभकामनाएं।